Hello friends, welcome back to our channel Creativitico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Juvenile Justice Act of 1986. We will cover that part. So first we have to know about what does the juvenile word means. In India, before passing of the Children Act 1960, there was no consistency regarding age limit of juvenile delinquency. It was just Bombay Children Act 1948 has defined that what does a child means and what is juveniles the word means. In India, what they have said in before passing of the Children Act 1960, there was no consistency regarding the age limit of there is no age limit of the juvenile delinquency. But Bombay Children Act 1948 has defined that child means a boy who has not completed the age of 16 years. For boys it was 16 years, and for girls it was 18 years. Below the age of 18 years, who will do the crime or who will do the act of delinquency, they will be considered as juvenile delinquency according to the Bombay Children Act 1948. They have defined that the boys under the age of 16 who had not completed 16 and girls who had not completed the age of 18 years will come under juvenile. उसके बाद different act और किसने दिया? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 ने क्या डिफाइन किया कि ए जुवेनाइल और चाइल्ड who in case of a boy has not completed age of 16 years and in case of girl 18 years of age. सेम डेफिनेशन उन लोग सेम एज लिमिट जुवेनाइल जो भी जस्टिस एक्ट ने है उस उन्होंने भी वही दिया फॉर बॉयज 16 and for girls it is 18. So same define किया, but according to the new law age of juvenile for both male and female involved in conflict with law has been fixed at 18 years. अभी ये चीज क्या हो गया है जो पहले था that has been considered as an 18 age. अभी वो 18 में हो गया है. 18 year for both the boys also, for the girls also will be considered as a juvenile. So let us go forward. A juvenile in conflict with law under the Juvenile Justice Act 2000 ने क्या डिफाइन किया था? इट वाज अ डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया था? ए जुवेनाइल हु इज alleged to have committed an offense but has not completed 18 years of age on the date of commission of said offense. उनके हिसाब से क्या था? 2000 का जो जुवेनाइल जस्टिस लॉ या फिर जुवेनाइल जो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर उन्होंने क्या बोला? जुवेनाइल हु इज मतलब एक लड़का या फिर एक लड़की जो जुवेनाइल है अंडर द एज ऑफ हु हैड नॉट कंप्लीटेड एंड हु हैव कमिटेड एन ऑफेंस, जो भी कमिट करेगा क्राइम या फिर कुछ ऑफेंस करेगा अंडर द कंप्लीटेड अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स विल बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस. उनको क्या क्राइम या फिर उस जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस. Again, Juvenile Justice Care and Protection Act 2015 ने क्या बोला? Juvenile defined under Section 2 35 Section 2 के अंदर 35 में क्या बोला गया? Juvenile means a child below the age of 18 years. So maximum लोगों ने different definition दिया है. इन्होंने बोला कि जो भी under the age of 18 years है वो हो जाएंगे juvenile. इन्होंने बोला जो 18 years के नीचे कुछ offense अगर करेंगे that will be considered as juvenile. So different act ने definition different on the basis of age level, on the basis of offense, they have given their own definition or they have defined juvenile in their own way. उसके बाद देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ डेलिंक्वेंसी. डेलिंक्वेंसी का क्या हम लोग समझ सकते हैं? डेलिंक्वेंसी किसे बोल सकते हैं? जुवेनाइल हम लोगों ने समझ लिया है मींस अंडर द एज ऑफ 18 कोई भी अगर कुछ ऑफेंस या फिर क्राइम कुछ इलीगल वर्क करता है मींस उस एज लिमिट को हम जुवेनाइल बोलते हैं. डेलिंक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेलिंक्वेंसी इज अनवेलकम्ड एक्शन, omission or moral behavior of a juvenile which is socially not permitted in any society. जुवेनाइल को हम लोग समझ लिया 18 इयर्स के अंदर जो भी आएंगे वो जुवेनाइल होंगे. डेलिंक्वेंसी क्या होगा? मीन्स जो भी जो पर्सन या फिर उस लेवल के डेलिंक्वेंसी का वर्ड का मीनिंग ही है अनवेलकम्ड एक्शन जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, जो मॉरल या फिर सोसाइटी का मॉरल वैल्यूज या फिर मॉरल बिहेवियर्स के अगेंस्ट है, जो सोशली परमिट नहीं किया जाता है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज डेलिंक्वेंसी.
Generally, it means that if the child fails to meet certain social obligations anticipated from them by the people, then he is considered to be delinquent. मीन जो चाइल्ड ये सब कुछ फेल हो जाएगा इसको कंसिडर करने में मीन सोशली अनवेलकम्ड एक्शन जो सोसाइटी में नहीं चल रहा है उस तरह का कुछ अगर काम करेगा या फिर मोरल बिहेवियर के अगेंस्ट किसी को हार्म करेगा सोशली जो ना परमिट नहीं किया जाता है उस तरह का कुछ काम करेगा ऑब्लिगेशन इन सब अगर वो हो जाएगा क्या बोलेंगे हम लोग उसको डेलिंक्वेंट चाइल्ड बोलेंगे। तो एज अ होल डेफिनेशन को हम समझते हैं तो जुवेनाइल 18 इयर्स एंड डेलिंक्वेंसी जो सोशली परमिट नहीं करता है उसको एक साथ क्या बोलेंगे हम। द जुवेनाइल डेलिंक्वेंट इज बिहेवियरल डिसऑर्डर। क्या बोला गया है? बिहेवियर का डिसऑर्डर बोला गया है। जो भी बिहेवियर जो हम लोग एज अ पर्सन एक अच्छा इंसान उसमें अगर डिसऑर्डर मीन्स कमियां अगर आने लगी तो दैट कैन बी कॉल्ड बिहेवियरल डिसऑर्डर व्हिच इज जनरली डिफाइंड एज चाइल्ड ट्राइंग और pretending to act like a grown up or adult। अगर एक चाइल्ड अगर जुवेनाइल जस्टिस सॉरी जुवेनाइल डेलिंक्वेंट को हम लोग एक साथ समझेंगे तो वो बिहेवियरल डिसऑर्डर है एंड जिसमें एक चाइल्ड क्या प्रिटेंड करता है एज एक्ट लाइक अ एडल्ट पर्सन ग्रोन अप पर्सन की तरह प्रिटेंड करता है एंड उनमें बिहेवियरल डिसऑर्डर की वजह से डिफरेंट सोशली जो परमिट नहीं करता है उस तरह का काम मॉरल बिहेवियर के अगेंस्ट काम हम लोग देखने को मिलते हैं। तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। डेलिंक्वेंसी का और एक डेफिनेशन दिया गया है एज पर द रिसेंट डेफिनेशन क्या दिया गया द टर्म जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स और चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ refers to any children below the age of 18 years who has come in contact with the juvenile justice system as a result of committing a crime or being suspected of committing a crime। जैसे कि जो रिसेंट डेफिनेशन क्या बोलता है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी वो चीज है जो एक चाइल्ड क्या करता है डिफरेंट लॉज के अगेंस्ट काम करता है एंड हु इज बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स एंड ही कम्स इन कांटेक्ट विद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का जुवेनाइल जस्टिस का जो सिस्टम है उसके अगर उसके अंदर उस सेक्शंस या फिर जो भी मेजर्स दिया गया है जो भी सजेशन दिया गया है उसके अंदर अगर आ जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम कैन बी या फिर अगर क्राइम करने के लिए कुछ प्लान करता है दैट कैन ऑल्सो कम अंडर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। दिस इज द रिसेंट डेफिनेशन ओके द जुवेनाइल की डेलिंक्वेंसी के बारे में। उसके बाद लेट अस सी सम रिपोर्ट्स की इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट क्या क्या कुछ क्राइम्स जो रिकॉर्ड हुए हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कितने जुवेनियल्स क्राइम ऑलरेडी कितने सॉरी हमारे इंडिया में कितने केसेस है। The cases registered under various sections of IPC crime against juvenile in conflict with law in 2014 have increased by 5.7% over 2013। कितना increase हुआ 2013 से? It is increased by 5.7। It is very तो 5.7% इंक्रीज हुआ है ओवर 1 ईयर एज 31,725 केसेस अगेंस्ट जुवेनाइल्स वर रजिस्टर्ड अंडर आईपीसी। कितने ज्यादा केसेस हैं 31,000। तो ये आईपीसी के क्राइम्स के अगेंस्ट ये रजिस्टर्ड हुए हैं 2013 से 2014 तक। कितने टोटल ऑफ नंबर कितने केसेस हो जाते हैं 33,526 सच केसेस total cases of 2014। So it is a huge number of cases। मतलब 18 साल के कम उम्र के बच्चे इतने केसेस कर रहे हैं मतलब क्राइम कर रहे हैं which is very important to know। एंड क्या मेंटेलिटी रहता है उनका क्यों जुवेनाइल या फिर उस तरह के डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट वो हम लोग टाइप्स में देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट जुवेनाइल्स वेर रिपोर्टेड अंडर द क्राइम हेड विच इंक्लूड क्या क्या क्राइम ज्यादातर पाए गए हैं थीफ चोरी करना 20.0%, देन रेप केसेस 5.9%, ग्रीवियस हर्ट किसी को, देन असॉल्ट ऑन वुमेन्स विद इंटेंशन टू आउटरेज हर मोडेस्टी वो 4 पॉइंट होना चाहिए था 0.7% ईच। तो किसी को हर्ट करना हो किसी को असॉल्ट करना हो वुमेन्स को ये सब कुछ केसेस अगेंस्ट जुवेनाइल रजिस्टर हुआ है। Apart from this, these four crimes heads have together accounted of 39.7% as a total and IPC cases में इतना जो अभी हम लोग में ना 2014 में juvenile association in conflict with law के against different cases registered हुए हैं। So it is a huge concern कि why they are doing like this। अभी हम state
लेवल में कुछ देखते हैं कि कितने केसेस हैं। एमपी में 6000, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात. So these are the number of cases which has been registered against the states के against. तो उनमें से ज्यादातर have reported the highest incident. ये तो कुछ ही स्टेट के नाम हैं. In each and every state में जैसे कि जुवेनाइल एक्ट हो रहे हैं, डेलिंक्वेंट एक्ट हो रहे हैं, तो ये कुछ ही राष्ट्र के नाम हैं. तो इनमें से हम लोग क्या, ए टोटल ऑफ 121 केसेस एंड 94 केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट जुवेनाइल्स अंडर मर्डर. मर्डर के केस कितने हैं? 94 केसेस टोटल मर्डर के केस है इन महाराष्ट्र में, जैसे कि ये वाला. एमपी में ज्यादा एंड मध्य प्रदेश रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग 2014. महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में ज्यादातर केसेस रजिस्टर हुए हैं मर्डर के. उसके बाद देखते हैं द हाईएस्ट केसेस ऑफ रेप जो रजिस्टर्ड अगेंस्ट जुवेनाइल्स इन द कंट्री वाज रिपोर्टेड फ्रॉम मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. तो हाईएस्ट नंबर में मध्य प्रदेश है, which was 21.3% and of total rape case registers against juvenile respectively in the all countries in the country. So there are number of cases has been registered against the juvenile act या फिर juvenile या फिर law के against, जो juvenile justice में आते हैं law के against जिसने भी काम किया है is they have been registered under the IPC. तो उसके बाद देखते हैं हम लोग causes of delinquency. अभी हम लोगों ने केसेस भी देख लिया, अभी देखना जरूरी है कि वो चीजों का क्यों क्या क्या कॉजेस हो सकता है, वाई दे आर डूइंग दैट टाइप ऑफ एक्ट. तो कॉजेस में हम लोग अकॉर्डिंग टू करवाचेस 27 ही क्लासिफाइड जुवेनाइल हु बिकम डेलिंक्वेंट इन रिलेशन टू 3 मेजर वेरिएबल्स. उन्होंने क्या बोला था, 3 मेजर वेरिएबल्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ये कॉजेस को. फर्स्ट इज द इंडिविजुअल सोशल क्लास, मीन्स कौन से क्लास से बिलोंग करता है. देयर इज अपर क्लास, देन मिडिल क्लास, देन लोअर क्लास. तो अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑल्सो देयर कुड बी जुवेनाइल एक्ट. इसीलिए उन्होंने इस कॉजेस को भी एक मेजर वेरिएबल्स या फिर एक सिचुएशन में डिवाइड किया है कि सोशल क्लास में एक्ट एज अ कॉज ऑफ डेलिंक्वेंसी. तो ज्यादातर हम लोगों को देखने को भी मिलता है कि लोअर क्लास से या फिर मिडिल क्लास से भी मीन्स सब क्लास से ही हम लोगों को क्राइम मिलेगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग डेलिंक्वेंसी में या फिर जुवेनाइल में हम ज्यादातर लोअर क्लास में देखते हैं. उसके बाद क्या डिवाइड किया है, द डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इमोशनल पैथोलॉजी. कॉम्प्रिहेंसिव इमोशनल पैथोलॉजी मीन्स इमोशन, जो इमोशन है वो चीज भी एक्ट या फिर एक कॉज हो सकता है टू डू अ डेलिंक्वेंट एक्ट. इमोशनल पैथोलॉजी अगर घर में जैसे कि स्मॉल फैमिली हो, फादर मदर काम करते हैं, वो घर में अकेला है, उस तरह का, तो वो भी एक इमोशनल पैथोलॉजी. इमोशनली उसको जो प्यार मिला शायद वो नहीं मिला, या फिर एकदम ग्रुप फैमिली या फिर जो बड़ा फैमिली है उसमें भी है सबको प्यार नहीं मिलता है, या फिर अगर लोअर कास्ट से ही. सो डिफरेंट इमोशनल जो भी इमोशनल पैथोलॉजी कैन एक्ट या फिर कैन कॉज अ टू डू अ डेलिंक्वेंट एक्ट फॉर अ सच टाइप ऑफ चिल्ड्रन. तो वो भी एक वेरिएबल्स है. उसके बाद है द एक्सटेंट टू विच द ऑफेंडर्स एंगेज देमसेल्फ इन डेलिंक्वेंट बिहेवियर. द एक्सटेंट टू विच द ऑफेंडर्स एंगेज देमसेल्फ, जैसे कि कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट स्टेप करते हैं या फिर किसी के फोर्स में आके करते हैं, वो भी हो सकता है, या फिर फर्स्ट उनको पता ही नहीं है कि वो ऑफेंस है कि नहीं. तो डिफरेंट ऑफेंडर एंगेज देमसेल्फ इन डेलिंक्वेंट बिहेवियर अननोइंगली एंड नोइंगली. किसी को पता है कि वो एक क्राइम या फिर डेलिंक्वेंट बिहेवियर हो सकता है, सोसाइटी के अगेंस्ट हो सकता है, किसी को पता ही नहीं है वो सोसाइटी के अगेंस्ट है. तो इस तरह का भी जब वो लोग या फिर करने का किसी का अच्छा चीज देखा तो उसको पाने के लिए भी. सो डिफरेंट कॉजेस कैन बी कम अंडर दिस पॉइंट कि द एक्सटेंट ऑफ विच टू विच द ऑफेंडर्स एंगेज देमसेल्फ इन डेलिंक्वेंट बिहेवियर. तो ये कॉजेस दिया था उन्होंने. उसके बाद देखते हैं सेलिन एंड उल्फगांग ने क्या दिया था, क्लासिफाई द डेलिंक्वेंट बिहेवियर इनटू 2 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ ऑफेंस. किस तरह का ऑफेंस होता है, काइंड्स ऑफ ऑफेंस में उन्होंने डिफरेंट कॉजेस दिए थे कि किस तरह का क्राइम होता है. अंडर द क्लास वन में डिवाइड किया था. क्लास 1 में क्या बोला उन्होंने, क्लास 1 में क्या होता है, जैसे कि डैमेज टू प्रॉपर्टी. इस क्लास में क्या हो सकता है, जैसे कि अंडर द क्लास 1 लिस्ट, इस लिस्ट में उन्होंने डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी का नाम, देन थीफ ऑफ प्रॉपर्टी, किसी का प्रॉपर्टी डैमेज करना,
वो भी एक डेलिंक्वेंट बिहेवियर है। किसी की चीज को चोरी करना, वो भी एक डेलिंक्वेंट बिहेवियर है। फिजिकल एंड बॉडीली इंज्योर्ड करना, मर्डर या फिर किसी को मारना बुरी तरीके से, फिजिकल एंड बॉडीली इंज्योर्ड, थेफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, ऑल दिस विल कम अंडर लिस्ट 1। लिस्ट 1 में उन्होंने इंक्लूड किया है काइंड्स ऑफ ऑफेंस, किस तरह का ऑफेंस या फिर क्राइम होता है। देन सेकेंड लिस्ट में उन्होंने क्या इंक्लूड किया, अंडर द क्लास सेकेंड दे इंक्लूडेड द कोहिरेशन। कोहिरेशन मीन्स क्राइम करने के लिए फोर्स करना। किसी को तुम अगर फोर्स कर रहे हो क्राइम करने के लिए, दैट विल कम अंडर द क्लास सेकेंड वाला, कोहिरेशन, फोर्स करना क्राइम के लिए। अगर ये पियर प्रेशर हम लोग बोलते हैं, पियर प्रेशर में आके कुछ क्राइम कर दिया तो वो कोहिरेशन में आएगा। देन सेकेंड में आएगा प्रॉपर्टी लॉस एंड प्रॉपर्टी डैमेज थ्रेटन। किसी को प्रॉपर्टी लॉस करने के लिए धमकी देना, उसका प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये सब कुछ आएगा सेकेंड लिस्ट। मीन्स धमकी के साथ, ब्लैकमेल के साथ उस चीज को लॉस या फिर डैमेज भी करना। देन विक्टिमाइजेशन कमिटेड अगेंस्ट एनी पर्सन, या फिर कुछ विक्टिमाइज मीन्स किसी पर्सन के अगेंस्ट कुछ क्राइम या फिर विक्टिमाइजेशन करना, उससे उन एक पर्सन को बुली करना, वो सब आएगा। विक्टिमाइजेशन कमिटेड अगेंस्ट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, कुछ कमर्शियल दुकान या फिर दुकान कुछ है या फिर किसी घर, वो तो प्रॉपर्टी में आएगा। कमर्शियल मतलब ज्यादातर जो हम लोग इंडस्ट्री हम लोग बोल सकते हैं, दुकान बोल सकते हैं। तो कमर्शियल जो है उस एस्टेब्लिश्ड के अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन या फिर उसके अगेंस्ट कुछ क्राइम करना विल कम अंडर दिस। Then the next is victimization which involves two individuals such as rape. तो rape cases भी आ सकते हैं in the second list. Then come no victimizations which includes torrency. Torrency का मतलब no victimization, एक तो हो गया ये second list, तो उसमें ये सब कुछ आएगा। उसके अलावा भी डिफरेंट पर्सन ने डिफरेंट एक्शंस या फिर डिफरेंट कॉजेस के बारे में बोला है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुवेनाइल एक्ट के बारे में बोला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किस तरह का जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कौन से टाइप में, कौन से फोर्स की वजह से, कौन के फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हम किस तरह का डेलिंक्वेंसी कर सकते हैं। तो सेकेंड क्लास सॉरी सेकेंड जो इस सेक्शन में या फिर सेकेंड काइंड ऑफ ऑफेंस में यही सब था, रेप। देन टोरेंसी मींस एब्सेंसी, एक्शन ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट गुड रीजन, जैसे कि स्कूल एब्सेंट करना, बंक करना, बिकॉज विदाउट एनी रीजन, स्कूल नहीं आना, स्कूल नहीं आके कुछ गलत काम करना। जैसे कि उड़ता पंजाब देखा होगा, उस फिल्म में भी क्या हुआ था, स्कूल के बच्चे कुछ बच्चे या फिर जो भूल गई, वहां पे क्या किया था, ड्रग्स का यूज किया था विदाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाके कहीं किसी से गैंग में शामिल हो जाना, वो सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो ये सब कुछ ऑफेंस आता है इन द सेकेंड लिस्ट। तो यही था ऑफेंस का। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को।